بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر سب سے پہلے تاج رکھا تھا؟ کنعان بن نمرود۔ وہ کون سا پہلا بادشاہ تھا جس نے سولی پر چڑھانے کی سزا دی تھی؟ فرعون۔ کس نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے اپنا اور اپنے بچوں کا ختنہ کس نبی علیہ السلام نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نماز کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا تھا؟ فجر کی نماز۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے اندر تک دیکھ سکتا ہے؟ ہدہد۔ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 14 سجدے موجود ہیں۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ بے صبری ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے کس نبی علیہ السلام کے نام کا لفظی مطلب رونے والا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ مچھلی کو۔ وہ کون سی قوم ہے جن کے لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہا کرتے تھے؟ قوم سمود۔ دجال کتنے دن تک دنیا میں رہے گا لیکن دن چھوٹے بڑے ہوں گے؟ 40 دن تک۔ شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا تھا؟ 14 سال تک۔ اللہ پاک کے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کے مرنے کے وقت انسان کی روح نکالنے کے لیے زمین پر آتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 5 شادیاں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دسترخوان کتنے دنوں تک نازل ہوتا رہا؟ 40 دنوں تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دسترخوان سے کتنے لوگ کھانا کھانے آتے تھے؟ 4000 لوگ۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بدھ کے دن بیماری میں مبتلا ہوئے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ قوم بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی کون سے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو۔ اللہ پاک کے کس نبی نے سب سے پہلے ترازو اور پیمانہ ایجاد کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ پہلے خلیفہ کا لقب اسلام میں سب سے پہلے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12 مرتبہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا کی گئی تھی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوف الہی سے روئے تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچاؤں کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا؟
2 चचाओं को। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कितने साल की उम्र में हुआ था? 65 साल की उम्र में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज कितनी दूर तक जाती थी? 8 मील तक। रोजाना कौन सी सूरत 33 मर्तबा पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? सूरतुल इखलास। मलकुल मौत किस काफिर बादशाह की रूह निकालते वक्त दुखी हुआ था? शताद की। किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का वजन 35 किलो था? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अल्लाह ताला की तरफ से अजाब कहा है? ताउन को। अजान मुसलमानों पर सुन्नत है या फर्ज? सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल खुफिया तौर पर तबलीग की थी? 3 साल तक। किस मुल्क में कुरान मजीद पर पाबंदी है? नॉर्थ कोरिया में। कुरान मजीद को कितने दिनों पहले मुकम्मल करना मना है? 3 दिनों से पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में हिस्सा लिया? 27 गज़वात में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? 8 साल। किस काफिर की बीवी औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है? फिरौन की बीवी। मौत के वक्त किस जगह पसीना आना मोमिन की निशानी है? माथे पर। किस अमल में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है? सब्र और शुक्र में। आसमान से शैतान को किस दिन निकाला गया था? मंगल के दिन। कौन से वक्त की नमाज पढ़ने से रिज्क में बरकत होती है? जोहर की नमाज। जन्नत का दरवाजा किस इबादत को कहा जाता है? जिहाद को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत में क्या करने का हुक्म दिया है? सब्र करने का हुक्म दिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान के साथ बैठने से मना फरमाया है? गंदे और बदबूदार इंसान के पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को गिरा देने का हुक्म फरमाया था? ग़ज़वा तबूक के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़रार को गिरा देने का हुक्म फरमाया था। इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों से पहला वादा किस चीज़ का लिया जाता है? नमाज का। कौन से वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना इंसान को काफिर बना सकता है? हराम काम करते वक्त। इस्लाम के शुरू में मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज थीं? 2 नमाजें। इस्लाम की हमायत में पहली बार तलवार उठाने वाले कौन से सहाबी थे? हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल किस फल से दी है?
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल संग तरह की सी है कि उसका मज़ा भी उम्दा और खुशबू भी उम्दा है। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली हिजरत कौन सी थी? हिजरत हबशा। क्या आपको मालूम है कि 5 वक्त नमाजों में कुल कितनी रकात होती हैं? कुल 48 रकात होती हैं। इस्लामी साल कुल कितने दिनों का होता है? 354 दिनों का होता है। ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आसमानों को किस चीज से बनाया है? धुएं से। क्या आप जानते हैं कि कौन से नबी हैं जिनका हाथ मोजज़े के तौर पर चमकने लगता था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्या कहकर पुकारा जाएगा? अबू मोहम्मद कहकर पुकारा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बानी काबा किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जानवरों को जुल्म और ज्यादती से बचाने का कानून किस शख्स ने बनाया था? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीजें ना होंगी, बताएं वो 6 चीजें कौन सी होंगी? नंबर 1 मौत ना होगी, नंबर 2 नींद ना होगी, नंबर 3 हसद ना होगा, नंबर 4 निजासत ना होगी, नंबर 5 बुढ़ापा ना होगा, नंबर 6 दाढ़ी ना होगी बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। क्या आपको मालूम है कि औलाद आदम की कौन सी आदत शैतान को पसंद है? हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान को औलाद आदम में वो शख्स सबसे ज्यादा पसंद है जो ज्यादा सोने और ज्यादा खाने वाला हो। ये बताएं कि 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी जुबान में नाजिल हुई? तौरात और ज़बूर अबरानी जुबान में, इंजील सिरियानी और कुरान मजीद अरबी जुबान में नाजिल हुआ। दुनिया में दरख्तों के तने लकड़ी के होते हैं, जन्नत में किस चीज के होंगे? सोने के होंगे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा इसम है जो कुरान मजीद में सबसे ज्यादा बार आया है? वो इसम अल्लाह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कितना अरसा पहले सहाबे फील की हलाकत का वाकया पेश आया? 55 दिन पहले। वो कौन है जो हैं तो ताबई मगर उनको दर्जा सहाबी का मिला? हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से नबी हैं जिनके हाथ में लोहा भी नरम हो जाता था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं उनका नाम बताएं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 5 नमाजों में से कौन सी नमाज किस नबी ने सबसे पहले पढ़ी? फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। जोहर की नमाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। असर की नमाज सबसे पहले हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। मगरिब की नमाज सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और इशा की नमाज सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। वो कौन से सहाबी हैं जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? हजरत हंजला बिन अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो बगैर रूह के सांस लेती है? सुबह कुरान मजीद में है और कसम है सुबह की जब वो सांस ले। घर में दाखिल होते वक्त घर वालों को सलाम करने का हुक्म किस सूरा में है?
सूरत नूर। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा शरीफ के कितने कोने हैं और नाम क्या है? 4 कोने हैं। रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने अराकी और रुकने अस्वद। हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला को शुक्र के मामले में कौन सी बात बेहद पसंद है? अल्लाह पाक को ये बात बेहद पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। क़यामत के दिन फैसला होने तक हर शख्स किस चीज के साए में होगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन फैसला होने तक हर शख्स अपने सदके के साए में होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत और फर्मा बरदारी में कौन सा परिंदा बहुत मशहूर है? परिंदा हुदहुद। ये बताएं कि वो कौन सी मछली है जो जन्नत में जाएगी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में हिफाजत से रखने वाली मछली जिसका नाम नजम है। क्या आप जानते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र क्यों कहा जाता है? आप जहां बैठते वहां हरी हरी घास उगाती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहने लगे। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज कौन थे? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपको मालूम है कि बैतुल मामूर किसे कहते हैं और ये कहाँ वाक़या है? बैतुल मामूर फरिश्तों के किबले का नाम है और ये खाना काबा की बिल्कुल सीध में 7वें आसमान पर है। फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तदा किसने की थी? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। ये बताएं कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस कौम को सबसे ज्यादा नाफरमान करार दिया है? कौम बनी इसराइल को। वो कौन सा दरिया है जिसमें मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था? दरियाए फरात। वो कौन सा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? मेंढक। दीन इस्लाम में बिल्ली के जूते का क्या हुक्म बयान किया गया है? बिल्ली का जूता पाक होता है, बिला खौफ खतर खा पी सकते हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक शीस का क्या मतलब है? अल्लाह का अतिया। पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस मस्जिद में कायम की गई थी? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तमाम मुसलमानों में कौन सी चीज मुश्तरक है? इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के किस साल में पैदा हुए थे? पहले साल में पैदा हुए थे। ये बताएं कि किस गुनाह को कुरान मजीद में नाकाबिले माफी गुनाह कहा गया है? शिर्क को। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज आदम किस जुबान का लफ्ज है? अबरानी जुबान का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मज़ीद इस्लामी और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।